کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد بخشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے اسلم بودانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں، اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو، بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی
एक दो पॉइंट वो भी हल हो जाएंगे। हम सब इस बात के गवाह हैं कि उस वक्त साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दावत दी MQM को, खालिद सिद्दीकी साहब को, आइए दूसरे कमरे में बैठ के उनको भी तय कर लें, और 20 मिनट के अंदर वो मामला तय हो गए। और उसके बाद उस मुआहदे पर तमाम अकाबरीन ने दस्तखत किए। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये दरअसल 22 करोड़ आवाम का मुकदमा है जो आज ये मुतहदा अपोजिशन और उनके साथ जिस तरह बाप के खालिद मक्की साहब और आज MQM ने ऐलान किया है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि जमहूर का तरीका ये है और एक रवायात ये हैं कि फिर प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सिलेक्टेड क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जब वो अदबी कुव्वत खो बैठे हैं पार्लियामान में, आज वो इस्तीफ़ा देकर एक नई रीत कायम करें और रवायत कायम करें। मुझे उम्मीद है, उनसे उम्मीद तो नहीं लेकिन होपिंग अगेंस्ट होप कि अगर वो इसको करेंगे तो एक नया वो एक रवायत कायम करेंगे। मैं आखिर में आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कहूँगा कि आप सब ने इस मामले में जितनी अरक रेजी के साथ, सिद्क़ के दिल के साथ आपने कोशिशें की हैं, ये दरअसल सिंध की मेहरान की वादी में बसने वाले लोगों के लिए, बलूचिस्तान के संगलाब पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, पंजाब के मैदान में बसने वाले लोगों के लिए और KPK के बर्फ़पोश पहाड़ों में बसने वाले लोगों के लिए, आवाम के लिए, माओं के लिए, उनके हकूक़ के लिए, उनके मुस्तक़बिल को बचाने के लिए, पाकिस्तानी माश को मजबूत करने के लिए, खारजी पॉलिसी को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान को दरअसल कायद का पाकिस्तान उस राह पर चलाने के लिए किया है। मैं आपका अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की अथाह गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहदा जो है, ये मुआहदा इंशाअल्लाह ये अब कायम रहेगा और इसके ऊपर मन इन लेटर स्पिरिट अमल होगा। आपको बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान सरबराह चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब से कि वो थैंक यू। अब हम तो PTV लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं MQM पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ कि जो फैसला MQM पाकिस्तान ने कराची का मफाद आगे कराची के मसाइल देखते हुए, हमारा सूबा का मसाइल देखते हुए, मुल्क का हालात देखते हुए जो फैसला MQM पाकिस्तान ने लिया है, हुकूमत का अलहदगी का ऐलान किया है और यूनाइटेड अपोजिशन का साथ दिया है, वो यकीनन तारीखी फैसला है। और मैं आप सब से एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो आपस में ताल्लुक है, इसका कोई वास्ता नहीं है हमारा आदम एतमाद से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने मिल के काम करना है हर हाल में, हर सूरत में। अगर हमने कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है। और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं वो आज से नहीं। और यहाँ बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था,
تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف سازش تھا. مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے PTI کی حکومت کی شکل میں، مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے، ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے. آج MQM پاکستان اپوزیشن کے صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا. اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا. اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے. ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی ہیں. مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ وزیر اعظم نہیں رہا. یا استعفیٰ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو. آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے. میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا. جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، مل کے محنت کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کے سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ نہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا. ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے
اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کے عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے. اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں. اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ فیصلہ کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک میں متحدہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، میں اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پورا پی ڈی ایم اور پورا حزب اختلاف اس کا خیر مقدم کرتا ہے. یقیناً یہ فیصلہ نہ صرف کراچی، نہ صرف سندھ، بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کا اظہار ہے اور جس کے ثمرات پورے ملک کو اور پورے قوم کو پہنچیں گے انشاءاللہ العزیز. 3.5 پونے 4 سال پہلے جس ڈرامے کا آغاز ہوا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. چرب زبانی، نمائش اور جھوٹ پر مبنی سیاست کا آج خاتمہ ہو رہا ہے. اس لیے میں تمام جماعتوں کے کارکنوں اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس نحوست سے نجات دلانے کے لیے جو قربانیاں دیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اپنی کامیاب جدوجہد کے نتائج پر. یقیناً ہم پاکستان میں ایک صحت مند سیاست کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہیں. احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے. میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزب اختلاف کا ساتھ دیں. یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے. اگر آپ کے اندر
कुछ भी अखलाकियात का कुछ आपके अंदर है, आपको आज इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास इन सियासी जमातों के, जिसमें जनाब खालिद मकसूद साहब तशरीफ़ फरमा है, खालिद मकबूस साहब तशरीफ़ फरमा है, इन फैसलों के नतीजे में हमारी तादाद इस वक्त 175 की है, जबकि हमें ज़रूरत सिर्फ 172 की है। तो लिहाजा ये कहना कि मेरे खिलाफ आलमी साजिश हुई है, मैं बताना चाहता हूँ आलमी साजिश उस वक्त हुई थी जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया जा रहा था। मुल्क पर हुकूमत करने की मनसूबाबंदी आलमी सतह पर हुई थी और वही वो आलमी साजिश थी। अब जाहिर है कि मुल्क है, उससे तो चलना है, लेकिन हमने उस वक्त से जो मौक़िफ़ लिया, हम अपने मौक़िफ़ पर आखिर लम्हे तक कायम रहे हैं, पूरी इस्तिक़ामत के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराते रहे हैं और आलमी साजिश ही के तहत उसको मावराए कानून इक़दामात करके जमहूरियत की रूह को मसल दिया गया था। वो थी साजिश। अब कोई साजिश नहीं है। ड्रामे मत बनाओ, खत आया है, फिर धमकियाँ दी, किसी ने धमकी नहीं दी। आपकी हैसियत वो नहीं है कि जिसको अमेरिका या इस लेवल का कोई मुल्क आपको धमकियाँ दे। अपनी सियासत ख़राब करनी है, उन्होंने अपने आप को आपके लेवल पे लाना है। तुम हो क्या चीज़, क्या आप इस किस्म की बातें करते हैं बड़े अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। इस हवाले से अवाम ने जद्दोजहद के और कुर्बानियों के नतीजे में, कारकुनों ने अपनी कुर्बानियों के नतीजे में अपना जमहूरी, आईनी और कानूनी हक हासिल किया है और हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और अब हमने आलमी एजेंडे को नाकाम बनाना है। आलमी एजेंडे की बात करना, ये हमने नाकाम बनाना है इंशाअल्लाह। हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत का तस्वुर रखते हैं और उसी की तरफ ये सारे पेशरफ्त हो रही है, जद्दोजहद हो रही है। हम एक कौम बनना चाहते हैं और हम आलमी दुनिया की सियासत में कौम की तकसीम के कायल नहीं हैं। एक पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की तरक्की, उसका इस्तेहकाम, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली, ये हमारा हदफ है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हदफ हम हासिल करके रहेंगे। जनाब खालिद मकबूस साहब, उनकी पूरी जमात, उनकी टीम, उन्होंने जो फ़ैसला किया है, एक बार फिर मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन्हीं ख़यालात पर इत्तिफ़ाक़ करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलवी साहब हज़रात, आज हमारे दरमियान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल साहब भी मौजूद हैं और इनकी वजह से हमें हौसला हुआ है कि हम मिलकर, सर हमारी वजह से भी थोड़ा जी सा आपकी वजह से, असल हमारी वजह से कि लाइन हमने लगाई। हम मिलकर लापता अफराद के लिए जद्दोजहद को कौमी जद्दोजहद में तब्दील करेंगे। मैं आप तमाम कायदीन की मौजूदगी में ये बात दोहराना चाहूँगा कि लापता तो किसी भी माशरे में हो सकते हैं, लेकिन लापता करने वाले किसी मुहज़्ज़ब माशरे का हिस्सा नहीं होते, किसी इस्लामी माशरे का हिस्सा नहीं होते। तो खुदा के लिए इसको अपना अहम तरीन नुक्ता बनाकर इस अजाब से पाकिस्तान को निजात दिलाइए। मैं चाहूँगा कि अख्तर मेंगल साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें। अब आपकी बारी। सर आप लेट कर रहे हैं और बातें दिमाग में भूल गई सारी, क्यों बनाई? हम लिखते नहीं है, अंदर ही बनाते हैं। हम उसी को बनाते हैं। सर आज टेढ़े सवाल ना करना। ठीक है, डन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM के साथियों को खुश आमदीद भी कहूँगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी उनको मेरे ख्याल में जितनी हमारी एफर्ट्स इतनी नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों की इसमें और उनकी नेक नियति की वजह से और उनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ। जब से ये मौजूदा हुकूमत बनी है और अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमने कोशिश की। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़े कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है अभी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और इखलाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तफ़ा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है, कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। जिस तरह के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सब के, न कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी ज़बान से भी हमारा ताल्लुक़ हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किए जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फ़ायदा क्या जहां पर हमारे वालिदैन अपनी उस आंखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को
ज़मीन बोझ करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं. उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी. बड़ी नवाज़िश अपनी. मोहन साफी हजरात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुंच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा. अब मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब. आज बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं. और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें. पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान. और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए. ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जो मैं, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया. मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ. वो एक मुआहदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर, ये उनका हक था. और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग. और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता. या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा. और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के MQM को दिया है, ये गलत सोच है. ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा. मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फ़ौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको, इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी. मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है. और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ. अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें. शुक्रिया जी. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साफी हजरात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुँचे हैं. आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई. हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा. 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती थी. अल्लाह का शुक्र. एक मिनट जी, अनाउंसमेंट है जी. एक सेकंड, एक अनाउंसमेंट है. अग्री में आमिर खान. सवाल नहीं है अभी, सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है. एक छोटी सी दरख्वास्त है. कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो बेचारे भी सबके सामने हो गए, तो साइन के लिए. अच्छा, अभी नहीं, वो नाम टेप करके मैं इनके सामने दे सकता हूं. अच्छा, तरतीब हो जाएगी. अभी बिखरी हुई दोस्तों. हाँ, वो सारे ठीक.
फोटोग्राफर हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है। ये जेन्युइन मुआहदा प्यास है, लगी है क्या? फेक लेटर नहीं यार है। इसने फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींच लें। आपकी बहुत मेहरबानी। असल में अगर बात करेंगे, ये ले हाँ, दबाएं, ये ले। आप नीचे करें वकार सैयद साहब। आज अगर बटन दबाएं। हाँ, मैं गुजारिश करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, क्योंकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवालात यही होते रहे, और आज उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है सारी चीज़ें। और बात जरूरी है मौलाना साहब। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, सैयद साहब मैं प्लीज गुजारिश करूँ, बारी बारी मैं एक गुजारिश मेहरबानी। जिस मसले ऐसे पर नहीं करना पड़ता प्लीज। जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय और न की किसने हो, करना है जाएगा? और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि एक से में कुछ किसी तरह की वाला नहीं है मौलाना साहब, फिक्र ना करें। आपको आजादी से आप पसंद के लिए जाते हैं। 2-3 सवाल अगर बारी बारी से ऐसे सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दीजिए। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। सवाल मेरे साथ आपसे है, इस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को रिलीफ देंगे? वही जो हम साइन कर रहे हैं। साथ ही कौमी हुकूमत की आपने बात की थी कि उस पर भी गाइड। जी बिल्कुल, देखें ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की। कैमरों के सामने और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, लड़ाई मत करना हम इस भाई मुल्क आप। के गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, नहीं वो नहीं करेंगे। काम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है नहीं है। आप नोट कर लें। बिल्कुल नहीं, हम उसका दूसरी बात, नहीं आपके समझ जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए कुछ तो डाल देना था। बात की सरदार साहब ने और मुफ्ती साहब ने, जो मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इकदाम उठाएंगे और छोटे सूबे की बहाली के लिए, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदाम ये हुकूमत करेगी इंशाल्लाह, इसी माशाल्लाह तरीके से जो सिंध के हवाले से सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यू के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यू आगे होगा। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। ऐसे नहीं खालिद महमूद साहब सवाल करें जी।
मियां साहब हुकूमत सोच रही है कि कल इन कैमरा इजलास बुलाया जाए कौमी असम्बली का, खालिद महमूद साहब आपके सामने रखा जाए तो क्या आप इस इजलास में यार भाई वहां से नहीं होता, वकाल सदी साहब सवाल करें, उनका प्रोडक्शन ऑन नहीं है। चेयरमैन बिलावल साहब, 26 जुलाई 2018 से आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो एक ही स्लोगन लगाया करते थे, वो एक ही बात किया करते थे कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जो अदारे हैं और वो सिविल अदारे हैं अपनी हुदूद में रह के काम करें। आज क्या आप ये यकीन दहानी कौम को सब करा सकते हैं कि इस वक्त अदारे न्यूट्रल है और अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसे करेंगे? जल्दी आड़ के इंशाअल्लाह ताला हमारा इस जद्दोजहद के नतीजे में हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने सारे पार्टीज बैठे हैं, और हमारा जो ये मेहनत है, हमारा ये जो सोच है, हमारा ये जो जद्दोजहद है, वो एक 3 नस्लों से मेरा जमान ये जद्दोजहद लड़ने हैं और आगे भी हम इस जद्दोजहद को इजाज़त